Hello everyone, this is your computer class of class 4. We are in chapter 2, more about computer. So we have already learned the desktop wallpaper, how to change wallpapers and personalize the desktop. I've already learned this, and screensaver, how to set your screensaver. And we are in page number 15, arranging icon. So we are going to learn how to arrange icon. So look at your book, arranging icon. Arranging the icon on the desktop is changing the way the icon appears on the desktop. Steps to arrange the icons on the desktops are. So we are going to learn how to arrange the icon on the desktop. Icons means you look at your desktop. This is your icon. This is small image and files and folders are there. This is called icon. So we are going to learn how to arrange it according to your need. So look at your book. This is a process how to arrange icon. First step is one, right click on the desktop. So we're doing it practically. First of all, you have to right click on the blank area of your desktop, and we'll go to sort by in the menu. So you have to go sort by in your menu. You will get 4 options: name, size, item type and date modified. Here is 4 item: name, size, item type and date modified. Click the desired option and you have to click which option you want. Click on the desired option. So we're going to click on name. So it's arrange your icon according to the file folder name. So, and let's try next one, sort by, and we'll try size, and the icon all automatically arrange according to the size of the file and folder. So this is your size option. So next option is item type. So if you click in item type, then the folder automatically arrange the types of files and folder according to types of file and folder. Item types means types of file and folder. And again we are going to sort by. Then last one is date modified. If you click on the date modified, the icon is arranged according to date when you have when you are modified it. So this is the process to arrange the icon. So let's see your book. Component of window. Another one is component of window. We are going to learn about the component of window. Let us know about the various component of the window. We have here notepad window is given in the this image. यहाँ नोटपैड विंडो दिया गया है जो इसका बहुत सारा कंपोनेंट दिया गया है. टाइटल बार है, ऊपर इसमें मेन्यू बार है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज है, क्लोज बटन है और वर्टिकल स्कोर बार भी है. तो वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन. सो फर्स्ट में क्या है, टाइटल बार.
टाइटल बार क्या होता है देखते हैं। द टाइटल बार, the narrow blue bar at the top of the window is called the title bar. It displays the title of the program along with file name. यहाँ इमेज में देखेंगे जो नेरो बार है, जो ऊपर ब्लू बार होगा, ये ब्लू कलर का, इसे हम टाइटल बार कहेंगे। इसमें फाइल नेम होगा इसमें ऊपर, और प्रोग्राम का भी नेम होगा। तो लैपटॉप विंडो में देखते हैं और वर्ड पैड का, दिस इज योर नोट पैड। तो इसमें जो ये बार है इसमें कलर थोड़ा डिफरेंस है, इसमें पिंक कलर दिखाया गया है, ये हो गया आपका टाइटल बार। सो दिस इज योर टाइटल बार। इधर फाइल नेम होगा और ये कौन सा प्रोग्राम है नोटपैड। फाइल नेम अभी फाइल नेम नहीं डाला तो ये अनटाइटल्ड हो गया नेम। तो दिस इज योर टाइटल बार ऑफ नोटपैड विंडो। सेकेंड वन इज मेन्यू बार। The bar below the title bar is called menu bar. The bar which is below the title bar is called a menu bar. It displays the menu names. यहाँ पे जो मेन्यू में दिया गया है उसका डिफरेंस मेन्यू नेम्स है वो डिस्प्ले करता है मेन्यू बार में। दिस मेन्यूज कैन बी clicked upon to open different option available for working on the program. और जो भी यहाँ मेन्यू दिया गया है डेस्कटॉप में देखिए, इसमें जो भी मेन्यू दिखाया गया है ये मेन्यू बार में, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं टू एडिट द प्रोग्राम। इसमें क्लिक करके फाइल में क्लिक किया तो बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। फाइल को सेव करने का, ओपन करने का, न्यू फाइल ओपन करने का ऑप्शन है। एडिट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। दिस इज द मेन्यू बार, इज मेन्यू। तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमको मेन्यू में, फाइल में काम करने के लिए। द नेक्स्ट वन है नेक्स्ट पेज नंबर 16, we have vertical scroll bar. It's help to scroll either to the top or bottom of the screen. So जो साइड में दिखाया गया है ये स्क्रॉल बार है। तो यहाँ हम कोई चीज़ टाइप करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी टाइप करने से इसमें स्क्रॉल बार दिखाया जाएगा। इसमें स्क्रॉल बार नहीं दिखा रहा है। इधर साइड में जो बार होता है इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। इसको हम ऊपर नीचे करके इसको शिफ्ट कर, अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करके माउस बटन को होल्ड करके इसको शिफ्ट किया जाता है। इससे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहेंगे। तो इमेज में भी दिखाया गया है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहेंगे। तो दूसरा है कंट्रोल बटन्स में मिनिमाइज बटन। इट इज द फर्स्ट बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर with a minus symbol on it. It reduces the window to small icon on the taskbar. So जो मिनिमाइज बटन दिया गया इमेज में दिखेंगे, तो इसमें मिनिमाइज बटन कौन सा है, ये माइनस साइन वाला जो है वो मिनिमाइज बटन है। तो इस मिनिमाइज बटन से में क्लिक करने से जो नोटपैड का विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसको जिसमें यहाँ दिखाया गया है मिनिमाइज बटन, ये वाला है जो मिनिमाइज बटन। इफ यू क्लिक ऑन इट देन द विंडो साइज गेट डिक्रीज।
मिनिमाइज हो जाएगा, वो सीधा नीचे आ जाएगा। इफ यू क्लिक ऑन दिस अगेन देन इट विल मिनिमाइज इट्स साइज एंड ये नीचे स्टेटस बार में दिखेगा। तो फिर से इसमें क्लिक करके फिर ओपन कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करके रख सकते हैं, फिर इसको चाहिए तो फिर ओपन कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, इसमें मैक्सिमाइज बटन है। तो मैक्सिमाइज बटन क्या है, इट हेल्प्स यू टू आइदर मैक्सिमाइज और डिस्प्ले द विंडो इन नॉर्मल साइज ऑन द स्क्रीन। सो ये मैक्सिमाइज बटन जो दिया गया है उसका काम क्या है, जो विंडो का जो साइज है उसको मैक्सिमम साइज तक उसको बड़ा कर सकते हैं, डिस्प्ले का मैक्सिमम साइज तक डिस्प्ले को बढ़ा सकते हैं। इट इज़ न्यू नेक्स्ट टू द मिनिमाइज बटन विथ अ स्क्वायर बॉक्स आइकॉन सिंबल। ये जो मैक्सिमाइज बटन होता है वो नेक्स्ट टू द मिनिमाइज बटन होता है। तो मैक्सिमाइज बटन के थोड़े साइड में ये मैक्सिमाइज और इसे रिस्टोर बटन भी कहते हैं, ये बटन आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट लैपटॉप विंडो में दिखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन इधर है। तो ये हो गया मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड विंडो का साइज थोड़ा रिड्यूस होगा। तो फिर इसको क्लिक करने से इसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे, तो ये मैक्सिमाइज हो गया, फुल स्क्रीन में आ गया। तो ये मिनिमाइज बटन और ये हो गया मैक्सिमाइज बटन। एक को मिनिमाइज करके स्टेटस बार में रखते हैं और दूसरे को साइज को रिड्यूस करने और रिस्टोर करने और मैक्सिमाइज करने के काम में आता है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्लोज बटन। इट इज द लास्ट रेड बटन विद द क्रॉस सिंबल on it at the top right corner. It helps you to close the window. जो ये बटन है वो क्या होता है, लास्ट रेड बटन जो लास्ट में दिखता है वो रेड बटन विद द क्रॉस सिंबल ऑन इट, जो इसमें दिखाया गया है, ये रेड बटन जो क्रॉस सिंबल्स में होता है उसे हम क्लोज बटन कहते हैं। ये टॉप राइट कॉर्नर में होता है, ये टॉप राइट कॉर्नर में होता है। इट हेल्प यू टू क्लोज द विंडो, सो हेल्प टू क्लोज द विंडो। तो इस लैपटॉप स्क्रीन में देखते हैं, ये हो गया आपका क्लोज बटन। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस then it's automatically closed. So if you open a new file again, then if close again it, then it's closed automatically. So this button is used for to close the window in your desktop or laptop. So look at your book. Another is step to resize a window. So we are going to learn about how to resize your window. This is your window, notepad window. We will learn about how to resize it. So number one step is move the mouse pointer on to any edge of corner from where you want to do the resizing of the window. The mouse pointer turns to a two-headed arrow. So हम विंडो को रिसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद उसको साइज, इसको रिसाइज करने के लिए इस तरह से कॉर्नर में जो
माउस बटन है, वो माउस कर्सर है, उसको हम इस कॉर्नर में ले जाएंगे तो इधर हमको क्या देखने को मिलेगा, द माउस पॉइंटर टर्न्स टू अ टू हेडेड एरो, जो इस तरह से दिखेगा, टू हेडेड एरो में दिखाई पड़ देगा। तो उसके बाद क्या करना है, नंबर 2, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन and drag the edge or corner in the direction you want to resize while keeping the mouse button press। तो इसमें माउस बटन को प्रेस करके इस कॉर्नर में ले जाके इधर प्रेस करके, तो इसको थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा, माउस को होल्ड करके इसको ड्रैग करती, इस तरह से विंडो को बड़ा छोटा साइज रिसाइज कर सकते हैं। तो इसको हम ऊपर नीचे से भी इसी तरह से अप एंड डाउन हम इसको साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये हो गया ये स्टेप्स टू रिसाइज अ विंडो। तो हम किसी भी साइज में इसको रख सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट टू मूव अ विंडो, place the mouse pointer on the title bar of the window। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, विंडो को किस तरह से मूव करते हैं। तो इसको मूव करने के लिए क्या प्रोसेस, तो यू हैव टू फर्स्ट प्लेस द कर्सर ऑन द माउस पॉइंटर ऑन द टाइटल बार। तो टाइटल बार ये हो गया, तो माउस पॉइंटर को हम इस टाइटल बार में प्लेस करेंगे। एंड नंबर 2 में क्या है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। तो लेफ्ट माउस बटन को हम प्रेस करके होल्ड करते हैं। तो उसके बाद एंड ड्रैग द विंडो कीपिंग द माउस बटन प्रेस, और माउस बटन को लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके उसको हम ड्रैग करेंगे, तो हम इस विंडो को जिधर भी हम मूव कर सकते हैं। इस तरह से माउस टाइटल बार में जो है माउस पॉइंटर को रख के इसमें लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके इसको हम इधर से उधर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हो गया तो स्टेप टू मूव अ विंडो। तो नेक्स्ट वन है पेज नंबर 17, टू सेट द डेट एंड टाइम। हम यहाँ डेट और टाइम कैसे सेट करते हैं कंप्यूटर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। Every computer has an inbuilt calendar and clock. So here every computer has its own inbuilt calendar and clock। उनका कंप्यूटर का अपना ही कैलेंडर एंड क्लॉक होता है जो ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। दे कीप ऑन वर्किंग इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। सो ये जो कंप्यूटर में जो कैलेंडर और क्लॉक है वो कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी वो चलता ही रहता है। तो इट्स कीप ऑन वर्किंग इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। सो स्टेप्स टू चेंज द डेट एंड टाइम आर द यहाँ क्या दिया गया है, स्टेप्स दिया गया है डेट और टाइम को चेंज करने के लिए। तो हम इस स्टेप्स को फॉलो करके डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम जो कंप्यूटर के राइट डाउन कॉर्नर में होता है, जो इसमें साइड में दिया गया है, इधर डेट एंड टाइम होता है। तो इधर डेट और टाइम लैपटॉप विंडो में इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। इस डेट और टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको स्टेप वाइज हम चेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है, एट द राइट साइड of taskbar left click the clock। A date and time window open ups, click on the change date and time setting at the right side of the taskbar। तो इधर दिया गया राइट साइड ऑफ taskbar, इधर इसको क्या करना है,
लेफ्ट क्लिक द क्लॉक। सो इसको लेफ्ट क्लिक करने से इधर जो है क्लॉक और कैलेंडर हमको देखने को मिलता है। एट डेट एंड टाइम विंडो लेफ्ट क्लिक द क्लॉक, तो इसमें लेफ्ट क्लिक करने से इसमें टाइम चेंज सेटिंग, चेंज द डेट एंड टाइम सेटिंग्स इधर आ गया। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से दूसरा विंडो खुल के आएगा जो बुक्स में भी दिखाया गया है इसको। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन डेट, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग बटन, इधर जाके चेंज डेट एंड टाइम बटन में क्लिक करना है। तो उसके बाद to change the date, under the date section select a month and day for your current date। तो यहाँ से आपको मंथ पहले चूज करना है कौन से, इधर क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, अप्रैल मार्च। तो इस तरह इस साइड क्लिक करेंगे तो अप्रैल मई जून। तो हमें इसमें पहले डेट चूज करना है। तो आज कितना है, मई 5, मई 17 में हमको क्लिक करना है। उसके बाद in time section to change the time, under the time section do the following। here under the time section do the following things। so to change the hour, double click on the hour and then click the arrow to increase or decrease the value। so first you have to click on the this time hour, then ये एरो में क्लिक करना है। इसको चेंज करना है तो आपको ऊपर नीचे डाउन एंड अप एरो को क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो डेट टाइम कौन सा है उसी में रख के छोड़ना है। तो ये आवर का भी ये जो दूसरा क्लिक किए 2 मिनट्स की है, टू चेंज द मिनट्स डबल क्लिक द मिनट्स एंड द क्लिक एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। तो इधर डबल क्लिक करके उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऊपर क्लिक किया तो ये इंक्रीज होता जाएगा, नीचे क्लिक किया तो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको इसी तरह से दूसरा है सेकंड का, टू चेंज द सेकंड डबल क्लिक द सेकंड एंड देन क्लिक द एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। तो इसको डबल क्लिक किया और इसको इंक्रीज करना है तो अब एरो क्लिक करना है, ये इंक्रीज होता जाएगा और दूसरा होता है डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से डेट और टाइम हम सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद ये चेंज करने के बाद टाइम और डेट चेंज करने के बाद ओके बटन है नीचे, ओके बटन में क्लिक कर देंगे तो टाइम एंड डेट चेंज हो जाएगा। तो इस जगह का आपको टाइम और डेट चेंज होता दिखाई देगा। तो दिस इज अ प्रोसेस हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। So thank you।